cover page. Today we are going to learn lesson number 5, a visit. Chapter 5, a visit. A visit. Mr. Ahmed's class had been planning a picnic for some time. The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. They were naturally very excited. Mr. Ahmed arranged the visit to a farm with Mr. Hassan, the manager of the agricultural farm. Mr. Ahmed की जमात कुछ अरसे से तफरीही सैर के मंसूबे बना रही थी और हेडमास्टर साहब ने उनको एक दिन की सैर करने की इजाजत दी और फिर मिस्टर अहमद ने ज़राअती फार्म के मैनेजर मिस्टर हसन से फार्म की सैर के लिए इजाजत तलब कर ली. It was a pleasant day in April when Mr. Ahmed and his class reached the model farm. Mr. Hassan received them at the gate and showed them around. The boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. It was the wheat harvesting season. The party saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. It cut the crop and tied into sheaves with one sweep. It seemed to eat up a large area of the golden crop which came out tied into a bundle at the other end. मीनिंग पढ़ते हैं. वो अप्रैल की खूबसूरत सुबह थी जब मिस्टर अहमद ने अपनी जमात को लेकर मिस्टर हसन के फार्म पर पहुंची. मिस्टर हसन उनका इंतजार कर रहे थे और उनके पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया और फिर फार्म की सैर करवाई. तालिब इल्मों को इस बात का अंदाजा न था कि ज़रई फार्म भी इतना वसीम हो सकता है. ये गेहूं की फसल काटने का सीजन था और सारे बच्चों ने गेहूं के खेतों में कंबाइन नामी बड़ी मशीन को काम करते देखा. वो गेहूं को काटती और उनको बांधती जाती और इस फसल को एक बार में ही ऐसा लगता कि हड़पती जाती और ये गेहूं के बड़े गट्ठों की शक्ल में दूसरी जानिब से निकल आते. आगे बढ़ते हैं. A visit. The wheat went into thresher, which separated the grain from the chaff. From one end of the machine fell a golden rain of sweet-smelling wheat, while chaff flew out at the other. The student watched the working of the machine with keen interest. Mr. Hassan said the whole process of plugging, seeding, harvesting and threshing the corn is done with machines on our farm. One man working with this machine can do as much work as 100 men working without it. Bilal, one of the students, sir, do you get bigger crops in this way? Mr. Hassan, or much bigger. While an average farm produces 15 to 20 quintals of wheat, for every hectare we produce as much as 60 to 70 quintals. अच्छा जी, एक क्विंटल इक्वल होता है 100 किलोग्राम के. अच्छा जी, आगे से इसकी ऊपर से मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, सुनिएगा गौर से. उसके बाद ये गेहूं थ्रेशर में चले जाती है और उससे अनाज फिर से अलग हो जाता है. थ्रेशर से अनाज बारिश की तरह एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ से भूसा निकलता है. मिस्टर हसन ने बताया कि हमारी फसलों पर सारा काम कलबारानी, तुखमरेज़ी, कटाई और गहाई मशीनों से ही होता है. इस मशीन के जरिए 100 लोगों का काम एक आदमी बखूबी कर सकता है मशीन की मदद से. बिलाल, जो कि तालिब इल्मों में से एक था, उसने पूछा, जनाब, क्या आपको इस तरह ज्यादा पैदावार होती है? मिस्टर हसन, हाँ, बहुत ज्यादा. एक फार्म में आमतौर पर फी हेक्टर 15 से 20 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम पैदावार होती है. हमारी जमीन पर 60-70 क्विंटल पैदा होते हैं. बिलाल, दिस इज वंडरफुल बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन. बिलाल मजाक करते हुए बोला कि बेहतरीन, लेकिन क्या मशीनें अनाज पैदा करती हैं? मिस्टर हसन लाफिंग. मिस्टर हसन हंसते हुए, नो सर्टेनली नॉट. नहीं, बिल्कुल नहीं. What in fact happened is that first the machine called tractors plow deeper, then they prepare the land for sowing much faster,
The sowing machine sows the seed very fast and no seed goes waste. We also select the best seed, then we use chemical fertilizers to enrich the soil. We get a lot of canal water, but we also irrigate our fields with our own tube well, which can supply water all the year round. Finally, we spray insecticides on our crops to kill germs and harmful insects. So our farm produces 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. मिस्टर हसन ने हंसते हुए कहा, दरअसल पहले ट्रैक्टर ज़मीन की बुआई करते हैं, फिर तेज़ी से बीज बोए जाते हैं और इस मशीन की वजह से बीज ज़ाया भी नहीं होते। हम अच्छी किस्म का बीज लेते हैं और पानी देते हैं। महंगी पानी भी अच्छा मिलता है, पर हम अपनी ज़मीन को अपनी ट्यूबवेल से पानी देते हैं और अच्छी किस्म की खाद भी देते हैं और कीड़ा मार दवाएं लगाते हैं और इस तरह हमें फी हेक्टर 3 से 4 गुना ज़्यादा पैदावार मिलती है। सरोश एंड अदर स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली व्हीट? सरोश, एक और जो स्टूडेंट था, उसने पूछा, क्या आप सिर्फ व्हीट ही प्रोड्यूस करते हो, ग्रो करते हो? मिस्टर हसन, नो, वी ग्रो व्हीट, मेज, कॉटन, शुगर कैन एंड ग्रेन. Moreover, we grow vegetables and we also have a large orchard where we grow mangoes and oranges. मिस्टर हसन, हम गेहूं, मकई, कपास, गन्ना और चने की पैदावार करते हैं और हमारे पास फलदार दरख्त भी मौजूद हैं जिनसे हम आम और संतरे की पैदावार हासिल करते हैं। The party was then taken to the vegetables farm and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season. Mr. Hassan explained that by using chemical fertilizers with plentiful supply of water and with the help of machinery, they could grow finer and better vegetables in all season and in large quantities. He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers. They were washed in running water and the boys ate them with great delight. इसके बाद पूरी जमात को सब्जियों के फार्म की सैर करवाई गई। तालिबे इल्म बेमौसम की सब्जियां देखकर हैरान रह गए। इस पर मिस्टर हसन ने बताया कि हम ये सब्जियां मशीनों और अच्छी खाद की मदद से उगाते हैं और इसके बाद तालिबे इल्म को खीरे और टमाटर पेश किए गए जिनको उन्होंने बहते हुए ताज़ा पानी से धोकर शौक से खाया। It was afternoon by now and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce. Later, the students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit hanging from the branches in large numbers. Of the trunks of the trees had been whitewashed with lime and the ground below was neat and clean. They did not see any weeds or wild grasses around. Mr. Hassan told them that it was necessary to protect them from pests and diseases which destroy the plants as well as the fruits. इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। दोपहर तक मिस्टर हसन ने अपने फार्म से उगने वाली सब्जियां ही तलबा को खाने बनवाकर खिलाई। उसके बाद तलबा ने आम के बाग की सैर की और डालियों पर लटकते हुए फल शौक से देखे। उन्होंने दरख्तों की टहनियों पर चूने के ताज़ा पानी से धोते हुए देखा। मिस्टर हसन ने बताया कि दरख्तों और फलों को वबाई बीमारी और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये जरूरी होता है। Mr. Hassan also told the visitors that
that the farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to it. Their finest cows and buffaloes would be kept. He surprised the visitors by telling them that the farm would use an electric milker to milk the animals. Modern machinery would make cream and butter and preserve the milk. He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. Mr. Ahmed thanked him. The boys were really happy with their visit and cheered loudly when they left the farm. इसकी मीनिंग पढ़ते हैं, समझते हैं। मिस्टर हसन ने बताया कि फार्म की कामयाबी के बाद अब डेयरी फार्म भी कायम करेंगे। यहाँ अलग इकसाम की भैंसें भी पाली जाएंगी और उनका दूध मशीनों की मदद से धोया जाएगा और जदीद मशीन बालाई और मक्खन निकालेंगी और ये मशीन दूध और मक्खन को जरासीम से महफूज रखेंगी। मिस्टर हसन ने वादा किया कि जब डेयरी फार्म खुलेगा तो वो मिस्टर अहमद को और उनकी जमात के साथ दावत देंगे ताकि वो आएं और आकर सैर करें। मिस्टर अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया और सारे बॉयज जो थे वो खुशी से चहकने लगे, गुनगुनाने लगे और वो आगे बढ़े। ऐसी तरीके से वो फार्म से चले गए। While coming back, they talked about their visit to the farm. Bilal said, "We need to establish many such farms throughout the country." जब वो वापस आए तो उन्होंने विजिट के बाद फार्म के विजिट के बारे में कहा। बिलाल ने कहा कि हमें चाहिए हम पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में ऐसे फार्म बनाएं। मिस्टर अहमद एग्रीड विथ हिम एंड सेड, मिस्टर अहमद उसकी बात से एग्री हुए और कहा, आई थिंक यू आर राइट, तुम सही हो। इन दिस वे वी वुड बी एबल टू मीट द नीड ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल, ये हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये था लेसन। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन। व्हाई मिस्टर अहमद्स पीपल एक्साइटेड? हाँ जी, बच्चे क्यों खुश थे, स्टूडेंट्स क्यों खुश थे, ये बताएं। मिस्टर अहमद पीपल वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर अलाउड टू गो फॉर पिकनिक। व्हाट सरप्राइज्ड द बॉयज व्हेन दे रीच्ड द मॉडल फार्म? वो बॉयज किस वजह से हैरान हुए? द बॉयज वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द फार्म वाज लार्ज एंड इंटरेस्टिंग। Question number 3. What is the name of the machine working in the fields? नाम क्या था जो fields में काम कर रही थी? याद करें जी। The name of the machine working in the fields is combine. What does a thresher do? Thresher क्या करता है? A thresher separates grain from the chaff. आगे बढ़ते हैं। Question number 5. How are plugging, seeding, harvesting done on the model farm? The plugging, seeding, harvesting are done with machines on the model farm. How much work can one man do with the help of combine? Combine machine के जरिए एक आदमी कितना काम कर सकता है? हमने पढ़ा था, जरा याद करिए। One man working this machine with this machine can do as much work as 100 men working without it. एक मशीन 100 लोगों का काम करती है। What is the average produce from an ordinary farm? The average produce from an ordinary farm is 15 to 20 quintals of wheat per hectare. What is the produce per hectare on the model farm? The produce on the model farm is 60 to 70 quintals per hectare. Why is there a difference in the output of the two? The difference is due to the use of best seed, plenty of water, chemical fertilizer and medicines. What did they do to kill germs and insects? They spray medicines to kill germs and insects. What do they grow on the model farm? They grow wheat, maize, cotton, vegetables and fruit on the model farm. Why are the boys surprised on the vegetable farm? The boys were surprised to see such vegetables growing there as were out of season.
Exercise B. Use the following words in sentences. यहाँ पे वर्ड्स हैं और उनके सेंटेंसेस. आप सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे. यहाँ पे सेंटेंसेस आपके लिए हमने बना दिए हैं, लेकिन आप खुद से बनाएंगे. वर्ड्स क्या हैं? प्लानिंग, मॉडल, ह्यूज, हार्वेस्टिंग, शीव्स, फर्टिलाइजर्स. Words and sentences: enrich, irrigate, orchard, plentiful, harmful, delicious. इसके भी वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस बने हुए हैं, लेकिन आप खुद से बनाओगे. उसके बाद आता है एक्सरसाइज सी. कंप्लीट these sentences with words from the lesson. यहाँ पे देखिए 10 आपको सेंटेंसेस है और वर्ड्स इसमें हमने जो है ना चूज करके डाले हैं. आप देखिए ये एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे और पहले आप रफली इसको पेंसिल से लिखेंगे अपने बुक पे, ब्लैंक्स आप फिल करेंगे. उसके बाद जो है ना आप इससे टैली कर लेंगे कि आपका सही है या गलत है. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है डी. एक्सरसाइज डी. टर्न द फॉलोइंग पैसेज इनटू डायरेक्ट स्पीच. ये है ग्रामर. तो पैसेज आप देख लें, उसकी डायरेक्ट स्पीच भी देख लें. Composition. Narrate in your own words how they got so much production per hectare on the model farm. ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. मैंने लिखा है आपके लिए, लेकिन आप अपने वर्ड्स में लिखोगे. आगे बढ़ते हैं. नंबर 2. Write 10 sentences about the crops grown in your area. जी, ये आप अपनी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में आसपास कोई ज़मींदार हो, कहीं पे देख लें, विज़िट कर लें, आपको खुद पता हो तो फसलें थोड़ा सा घूमें और देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके ऊपर लिखिए आप.